خداوند یسوع مسیح میں تمام مسیحوں اور خاص طور پر سینٹرل بیپٹسٹ چرچ کے تمام ممبران کو خداوند یسوع مسیح کے نام سے آپ کو سب کو سلام پہنچے۔ 2 ہفتے پہلے ہم نے پہلی 4 آیات میں زبور 91 کا ہم نے مطالعہ کیا تھا، اور ہم نے سیکھا تھا کہ جب ہمارا خدا بڑا ہو تو ہمارا توکل یعنی بھروسہ کیوں بڑا ہو جاتا ہے۔ کلیدی لفظ آیت نمبر 2 میں لفظ توکل ہے۔ یہ لفظ تمام زبور کو اپنے اندر سموئے ہوئے اور گھیرے ہوئے ہے۔ اس توکل کی بنیاد خدا کے کلام کی سچائی ہے، جو بڑے خدا کو خدا کے 4 ناموں یعنی حق تعالی جو حاکم اعلیٰ ہے، قادر مطلق جو تمام قدرت رکھتا ہے، خداوند جو پاک اور قدوس ہے، خدا جو خالق اور مالک ہے، ان 4 ناموں کے ذریعے سے زبور نویس خدا کو بڑے خدا کے طور پر دکھاتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پہلی 4 آیات میں وہ یہ سکھاتا ہے کہ ہمارا خدا بڑا خدا ہے، اس لیے ہمارا بھروسہ، ہمارا توکل بھی بڑا ہونا چاہیے۔ اگلی آیات میں یعنی آیت نمبر 5 سے 8 میں وہ یہ سکھاتا ہے کہ کیونکہ ہمارا خدا بڑا ہے اس لیے ہمارے خوف چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ جب ہمارا خدا بڑا ہو تو ہمارے خوف چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دشمن چاہے کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہوں، خدا راستی کے ساتھ ہمیشہ انصاف کرتا ہے۔ خدا ہمیں مہلک وباؤں اور صیاد کے پھندوں میں محفوظ اور قائم رکھتا ہے۔ جب ہمارا دل و دماغ اپنے بڑے خدا پر مرکوز ہوتا ہے تو ہماری تمام تر فکریں اور خوف چیونٹی کی طرح چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ آج ہم زبور 91 کی آیت نمبر 9 سے 13 میں یہ سیکھیں گے کہ جب ہمارا خدا بڑا ہوتا ہے تو ہماری محافظت بھی بڑی ہوتی ہے۔ بڑا خدا بڑی محافظت کرتا ہے۔ آئیے ان 4 آیات کو ہم کلام خدا میں سے پڑھتے ہیں، اور ان 4 آیات میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں یوں لکھا ہے، زبور 91 اس کی آیت نمبر 9 سے، پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے، تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی، کیونکہ وہ تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری سب راہوں میں تیری حفاظت کریں اور تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس لگے۔ تو شیر ببر اور افی کو روندے گا، تو جوان شیر اور اژدہا کو پامال کرے گا۔ ان آیات میں آیت نمبر 10 جو ہے یہ ایک عظیم وعدہ پیش کرتی ہے جسے آج ہم سب حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم اس پیغام کو جب سنیں گے تو ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم آفت اور وبا سے محفوظ رہیں۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ آفت اور وبا سے محفوظ رہے، جس میں کرونا وائرس بھی شامل ہے، مگر آیت نمبر 10 کے وعدے کو پانے کے لیے آیت نمبر 9 کی ہدایت پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور آیات 11 سے 13 پر ایمان رکھنا بھی نہایت اہم اور نہایت ضروری ہے۔ ہمیں صرف وعدے ہی پر غور نہیں کرنا بلکہ وضاحت پر بھی دھیان لگانا ہے۔ آج کلام خدا میں سے ہم اس وعدے کے متعلق جس کا ذکر آیت نمبر 10 میں ملتا ہے، ہم 4 باتیں سیکھیں گے: وعدے کی تاکید، وعدے کی تسلی، وعدے کی تکمیل اور وعدے کی تعبیر۔ یہ 4 باتیں آج ہم ان آیات میں یعنی آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 13 میں سیکھیں گے۔ سب سے پہلے وعدے کی تاکید۔ تاکید سے میری مراد ہے شرط یا تقاضا۔ وعدے کی تاکید شرط کیا ہے؟ آیت نمبر 9 میں لکھا ہوا ہے، پر تو اے خداوند میری پناہ ہے، تو نے حق تعالیٰ کو اپنا مسکن بنا لیا ہے۔ آیت نمبر 10 کا وعدہ صرف ان سے ہے جو آیت نمبر 9 کی تاکید یعنی شرط کو پورا کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں آیت نمبر 10 کا فائدہ صرف ان ہی کو ہوگا جو آیت نمبر 9 کی شرط پر پورے طور پر
عقیدہ رکھتے ہوئے عمل کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9 کا اگر آپ نے غور کیا ہو تو پہلا لفظ پر ہے۔ یہ لفظ پر شرطیہ لفظ ہے، اور والدین اور استاد اکثر اوقات یہ لفظ جو ہے پر، مگر، لیکن اس کو اکثر استعمال کرتے ہیں۔ والدین اکثر اپنے بچوں کو کہتے ہیں چاکلیٹ ملے گی، کمپیوٹر ملے گا، موبائل بھی ملے گا، مگر پر پہلے فلا فلا کام کرو گے تب ملے گا۔ استاد بھی اپنے شاگردوں سے بعض اوقات کچھ اسی طرح کا مگر اور پر جیسی جو اصطلاحات ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 2 کی ہدایت ایک ہی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور وہ ایک ہی سچائی توکل ہے، یعنی اعتماد اور بھروسہ ہے۔ دراصل زبور نویس آیت نمبر 9 میں پہلی 4 آیات میں سکھائی گئی سچائی کا خلاصہ بیان کر رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کی محافظت کے وعدے کو پانے کے لیے خدا کے قریب رہو اور اس پر توکل کرو، اور جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اس زبور کا جو کلیدی لفظ ہے وہ توکل ہے، اعتماد اور بھروسہ ہے۔ سوال یہ ہے کس بات پر توکل کریں؟ اس کا جواب ہمیں اسی زبور میں ملتا ہے کہ کس پر توکل کریں۔ حق تعالیٰ پر پہلی آیت میں، قادر مطلق پر، خداوند پر جو خود سے موجود ہے، جو مقدس ہے، پاک ہے، اور خدا پر جو الوہیم ہے، جو خالق اور مالک ہے، وہ حاکم اعلیٰ ہے، وہ قدرت اعلیٰ ہے، وہ مقدس اعلیٰ ہے، وہ خالق اعلیٰ ہے، جسے ہمیں اپنی پناہ اور گڑھ بناتے ہوئے اس کے پردہ میں رہنا ہے اور اس کے سایہ میں سکونت کرنا ہے۔ اگرچہ یہ ہدایت بہت سادہ لگتی ہے، مگر ہمارے دل گناہ کی وجہ سے بگڑے ہوئے ہیں۔ انسانی دل گناہ کے بگاڑ کا شکار ہیں۔ اس بگاڑ کی وجہ سے ہم صیاد کے پھندوں میں پھنس کر دوسری چیزوں پر توکل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم خدا پر اعتماد کی بجائے اپنے اعمال پر بھروسہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں بائبل کا ٹیچر اور طالب علم ہوتے ہوئے بڑی آسانی سے اس بات کو جانتا ہوں کہ مجھے ذاتی طور پر پتا ہے کہ خدا کے نزدیک آئے بغیر، اس پر بھروسہ کیے بغیر بائبل کو پڑھنا اور مطالعہ کرنا بہت آسان پھندا ہے، اور میں خود کئی بار اس جرم کا ارتکاب کر چکا ہوں۔ خدا کو اپنی پناہ اور گڑھ بنائے بغیر، اس کے کلام کو اپنے اندر سرایت کیے بغیر خدا کے کلام کی تعلیم اور تبلیغ کرنا بہت ہی ممکن اور بہت ہی آسان ہے۔ یہ بڑا ہی ممکنہ اور آسان پھندا ہے جس میں کئی بار بائبل کے استاد بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ میرے خیال میں مذہبی حلقوں میں یہ عمل بہت ہی عام ہے۔ بہت سے لوگ صبح و شام خدا کے قریب آئے بغیر کلام کو پڑھتے ہیں اور مذہبی فریضے ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے مذہبی اعمال سر انجام دیتے ہیں۔ وہ خدا کے بجائے اپنے مذہبی اعمال پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اپنے مذہب اور اعمال پر بھروسہ کرنے اور اپنے بڑے خدا کے ساتھ اپنے تعلقات پر بھروسہ کرنے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جب آپ اپنے مذہبی اعمال پر بھروسہ کرتے ہیں تو خوف، فکریں، پریشانیاں آپ پر غالب آ جاتی ہیں، لیکن جب آپ خدا پر بھروسہ کرتے ہیں تو ناقابل بیان سکون اور اطمینان اور امید حاصل ہوتی ہے۔ آج میرا سوال آپ سے یہ ہے، آپ کس پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ اپنے مذہبی اعمال پر یا اپنے بڑے خدا پر؟ یہ سوال بڑا ہی اہم سوال ہے۔ آپ کس پر بھروسہ کر رہے ہیں؟ اپنے مذہبی اعمال پر یا اپنے بڑے خدا پر؟ اب سوال یہ اٹھتا ہے، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا توکل یعنی بھروسہ ہمارے مذہبی اعمال پر نہیں بلکہ حقیقی اور بڑے خدا پر ہے؟ میرے خیال میں یعقوب 4 باب کی 8ویں آیت، جہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ خدا کے نزدیک جاؤ تو وہ تمہارے نزدیک آئے گا۔ اے گنہگارو اپنے ہاتھوں کو صاف کرو، اے دو دلو اپنے دلوں کو پاک کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یوحنا کے 4 باب کی 6 آیت جو بڑی مشہور آیت ہے، جس میں یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ یہ دونوں آیات بہت ہی مددگار
آیات ہیں اس سوال کے جواب کے لیے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا توکل یعنی بھروسہ ہمارے مذہبی اعمال پر نہیں ہے بلکہ حقیقی خدا پر ہے۔ ہم یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو کہ ایک شخصیت ہے، مذہبی عمل نہیں ہے، خدا کے نزدیک آ کر زبور 88 کے مصنف ہیمان کی طرح خدا سے دعا کرتے ہیں۔ اب نوٹس کیجئے، میں نے کہا ہم دعا کرتے ہیں، دعا پڑھتے نہیں ہیں۔ کئی بار کچھ لوگ جو ہے وہ دعا کرتے نہیں ہیں، دعا کتاب سے پڑھتے ہیں۔ جب ہم ایسا کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارا توکل اور بھروسہ ہمارے اعمال پر نہیں ہے، ہمارے خدا پر ہے۔ ہمیں خدا سے بات چیت کرتے ہوئے اپنے شک، اپنی شکر گزاریاں، اپنی فکریں، اپنی خوشیاں خدا کے ساتھ شیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سے پتہ چلے گا کہ ہمارا بھروسہ ہمارے اعمال پر نہیں ہے، ہمارے بڑے خدا پر ہے۔ ہمیں خدا سے بات چیت کرنا ہے۔ یسوع کے نام سے ہمیں خدا سے دعا کرنے کے لیے ایک پرسکون جگہ تلاش کر کے سجدہ ریز ہو جانے کی ضرورت ہے۔ خدا سے درخواست کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے کلام سے ہمیں یسوع کو دکھائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خدا کے کلام پر دھیان لگانے کی ضرورت ہے۔ دھیان لگانے سے مراد غور و فکر کرنا ہے۔ زبور نویس جب زبور 1 کو لکھتا ہے تو اس میں وہ کہتا ہے کہ دن اور رات اسی کی شریعت پر ہمیں دھیان لگانا ہے۔ بائبل کی قدرت اس کے پیغام میں ہے، یاد رکھیے، سیاہی اور صفات میں نہیں ہے۔ کئی بار ہم بائبل کی قدرت کو سیاہی اور صفات میں ڈھونڈتے ہیں، لیکن سیاہی اور صفات میں کلام کی قدرت نہیں ہے۔ کئی لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ بائبل کا گھر میں ہونا برکت کا وسیلہ ہے۔ میں اس بات کو نہیں مانتا کہ صرف بائبل کا گھر میں ہونا ہی برکت کا وسیلہ ہے۔ کئی لوگ بائبل کی مخصوص آیات اور حصوں کو صرف زبانی یاد کر کے دہراتے رہتے ہیں۔ اس طرح صرف دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک سمجھ اور عمل نہ ہو۔ جب ہمارا دھیان یعنی دل و دماغ دن اور رات اس کی شریعت پر لگا رہتا ہے اور اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی بن جاتا ہے، تب ہی ہمیں قادر مطلق کے سایہ میں سکونت اور پناہ یعنی محافظت حاصل ہوتی ہے۔ سو وعدے کی تاکید شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ خدا اور اس کے کلام پر غیر متزلزل توکل رکھنے کی ضرورت ہے، اپنے مذہبی اعمال پر نہیں، اپنے بڑے خدا پر۔ سو وعدے کی تاکید۔ دوسری بات جو ہم سیکھتے ہیں وہ وعدے کی تسلی ہے۔ آیت نمبر 10 میں لکھا ہے، تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ جس طرح آیت نمبر 9 زبور کی پہلی 4 آیات کا خلاصہ کرتی ہے، بالکل اسی طرح سے آیت نمبر 10 زبور کی آیت نمبر 5 سے 8 کا خلاصہ کرتی ہے۔ آیت نمبر 10 وعدہ کرتی ہے کہ تجھ پر کوئی آفت نہیں آئے گی اور کوئی وبا تیرے خیمہ کے نزدیک نہ پہنچے گی۔ یہ اس آیت کا وعدہ ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں لفظ آفت کو صحیح طور پر سمجھنا پڑے گا۔ کئی لوگ اس آیت کا مطلب یوں لیتے ہیں کہ ایماندار پر کبھی کوئی مشکل نہیں آئے گی، کبھی کوئی دکھ نہیں آئے گا، کبھی کوئی بیماری نہیں آئے گی، کبھی مسائل نہیں آئیں گے۔ یہ تفسیر اور تشریح میں بہت واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ بائبل مقدس ایسی کہانیوں اور ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے جب ایماندار کو مشکلات، دکھ، بیماری اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ایسی تفسیر آپ کے اپنے ایمان اور خدا کی وفاداری پر سوال اٹھاتی ہے۔ یا تو آپ کا ایمان صحیح نہیں یا آپ کا خدا بڑا اور وفادار نہیں۔ اسی زبور کی آیت نمبر 15 اس تفسیر کی جو ہے وہ کی غلط فہمی کو دور کرتی ہے۔ اس قسم کی تفسیر کی غلط فہمی کو وہ دور کرتی ہے۔ آیت نمبر 15 میں لکھا ہے، میں مصیبت کے وقت اس کے ساتھ رہوں گا۔ اس تفسیر کو جو ابھی جس کا میں نے تذکرہ کیا ہے، یہی آیت غلط ثابت کرتی ہے۔ کیا ان دونوں آیات میں تضاد ہے؟ جواب اس کا واضح ہے، بالکل بھی نہیں۔ زبور نویس تضاد نہیں کر رہا۔ یہاں وعدہ مصیبت نہ آنے کا نہیں ہے،
बल्कि मुसीबत में साथ रहने का है। बुजुर्ग यूसुफ पर मुसीबतें आई मगर खुदा उसके साथ था। सदरक, मीसक और अब्दनजू पर मुसीबत आई मगर उनका खुदा उनके साथ था। इब्तदाई कलीसिया पर मुसीबतों के पहाड़ टूट पड़े लेकिन उन्हें मालूम था कि उनका खुदावंद उनके साथ है। कुछ इसी तरह की सूरत हाल हमें लूका की अंजील के 21वें बाब की आयत नंबर 16 से 18 में मिलती है। तो हम इस हवाले को कलाम खुदा में से पढ़ते हैं। लूका की अंजील उसका 21वां बाब और उसकी आयत नंबर 16 से 18 में यीशु मसीह अपने शागिर्दों से मुखातिब हैं और आपने ये फरमाया, और तुम्हें माँ बाप और भाई और रिश्तेदार और दोस्त भी पकड़वाएंगे, बल्कि वो तुम में से बाज को मरवा डालेंगे और मेरे नाम के सबब से सब लोग तुमसे अदावत रखेंगे, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बीका ना होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? लूका 21वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को तसल्ली देते हुए कहते हैं कि मेरे नाम के बायस तुम्हें कत्ल किया जाएगा, तुम्हें मरवा डाला जाएगा और तुमसे नफरत की जाएगी, लेकिन तुम्हारे सर का एक बाल भी बीका ना होगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी को मार भी दिया जाए और उसका बाल भी बीका ना हो? इसका क्या मतलब है? इसका जवाब हमें आयत नंबर 19 में मिलता है, जहां पर यीशु मसीह ने फरमाया कि अपने सब्र से अपनी जानें बचाए रखोगे। तुम अपने सब्र से अपनी जानें बचाए रखोगे। यहाँ खुदावंद यीशु मसीह मौत के बाद अबदी जिंदगी की बात कर रहे हैं। खुदावंद ये नहीं कह रहे थे कि तुम पर जिस्मानी दुख, वबाएं, मुसीबतें और मौत नहीं आएगी, बल्कि वो ये कह रहे थे कि तुम्हें सब्र और बर्दाश्त करने के लिए ईमान दिया जाएगा और तुम्हारा जो आखिरी अजर है वो हयाते अबदी होगा। तुम्हें इसलिए फिक्र करने की, खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल में यही तसव्वुर ज़बूर 91 में ज़बूर नबी समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर आपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत और क़यामत पर ईमान रखा है और खुदा को अपनी पनाहगाह बना लिया है, तो याद रखें हकीकी मानों में आप पर कोई आफत नहीं आएगी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह में कलाम हमें यह सिखाता है कि आपकी रूहानी जिंदगी हमेशा के लिए महफूज है, वो हमेशा आपके साथ है। सवाल ये है कि क्या आपको यकीन है कि आप नए सिरे से पैदा हुए हैं? अगर आप नए सिरे से पैदा हुए हैं तो आप महफूज हैं। कोई आफत बाशमूल कोरोना वायरस आपको खुदा की अब्दी सकूनत गाह से कभी जुदा नहीं कर सकती है। कैंसर आपको कादर मुत्तक़ के साया से महरूम नहीं कर सकता है। मुजरिम और बदकार इस दुनिया के आपको खुदावंद को पुकारने से रोक नहीं सकते हैं। यहाँ तक कि इब्लीस भी आपको खुदावंद से अलग नहीं कर सकता। जिन लोगों ने मसीह के नाम के वसीला से हक ताला को पुकारा है और उस पर ईमान रखा है, मौत भी उनका बाल बीका नहीं कर सकती। सवाल ये है, क्या आपने यीशु मसीह के वसीला से हक ताला को पुकारा है? लिहाजा इस वादे की तसल्ली ये है कि अगर हम पर आफत आए, हमारी आकबत और हमारी आखिरत महफूज है। तो हमने वादे की ताकीद पर यानी शर्त पर बात की, हमने वादे की तसल्ली पर बात की कि वादे की तसल्ली ये है कि अगरचे हम पर आफत आए, हमारी आकबत और आखिरत महफूज है। तीसरी बात जो हम आयत नंबर 11 और 12 में सीखते हैं वो वादे की तकमील है। वादे की ताकीद, वादे की तसल्ली और वादे की तकमील। आयत 11 और 12 में जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें वादे की तकमील नजर आती है। आयत नंबर 11 और 12 में लिखा है, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा कि तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करें और तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे, ता ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। तू शेर बब्बर और इफ्फी को रौंदेगा, तू जवान शेर और अजदहा को पामाल करेगा। वादे की तकमील के लिए यहाँ खुदा के फरिश्तों का
इस्तेमाल किया गया है। वह अपने वादे की तकमील के लिए खुदा अपने फरिश्तों को इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर नोटिस करने की बात है, गौर करने की बात है कि यहाँ फरिश्ता नहीं है, फरिश्तों लिखा है, जो कि प्लूरल यानी जमा में है, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा। यहाँ सिर्फ एक मुहाफिज फरिश्ते का जिक्र नहीं है, जो अक्सर औकात बचपन से हम सुनते आते हैं कि खुदा अपना मुहाफिज फरिश्ता भेजता है। खुदा अपने फरिश्तों को निगहबान और निगरान बनाता है। इस आयत को अबलीस ने यस्सु को धोखा देने और आजमाने के लिए इस्तेमाल किया था, और ये साबित करने की कोशिश की थी कि वो फरेबी और सयाद है, जो फंसाने और नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। लेकिन खुदावंद के फरिश्ते हमेशा हमारी मुहाफ़ज़त और हमारी बेहतरी के लिए तैयार रहते हैं, हमारी खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। मत्ती 4 बाब की आयत नंबर 5 से लेकर 7 में यूं मरकूम है, यूं लिखा है कि तब अबलीस उसे यानी यीशु मसीह को मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तई नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव को पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसे कहा, ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। अबलीस ना सिर्फ यीशु को रोजा के दुख से रोकना चाहता था, बल्कि वो सलीब के दुख से भी यीशु को रोकने की कोशिश कर रहा था। ये आजमाइश यीशु की खिदमत के आगाज में हुई, ये बात काबिल गौर है। अबलीस शुरू से चाहता था कि यीशु पत्थरों से रोटी पैदा करके जिस्मानी भूख की तकलीफ से बच सके। अबलीस चाहता था कि यीशु आसमानी बाप पर भरोसा किए बगैर हैकल के किंगरे से अपने आप को छलांग लगाकर गिरा दे, ताकि उसे सलीब का दुख ना सहना पड़े। अबलीस ने बड़ी मक्कारी से ज़बूर 91 को अपने मकसद की तकमील के लिए इस्तेमाल किया, और आयत नंबर 11 का एक हिस्सा बड़ी मक्कारी के साथ उसने छोड़ दिया, जहां पर यह लिखा है कि वो तेरी सब राहों में तेरी हिफाजत करेंगे। आयत का यह हिस्सा बहुत ही अहम है, और अबलीस ने इसको छोड़ दिया, क्योंकि खुदा अपने भरोसा करने वालों की तमाम राहों की मंसूबाबंदी और मुहाफ़ज़त करता है, और अबलीस को यह पसंद नहीं है। दरअसल अबलीस ये कह रहा था कि अगर तुम मेरे तरीके पर चलोगे तो तुम्हें रोजा रखने की जरूरत नहीं, तुम्हारे अजीज तुम्हें धोखा ना देंगे, तुम्हारे शागिर्द तुम्हें छोड़ के ना जाएंगे, तुम्हें सलीब का दुख ना सहना पड़ेगा। अगर तुम अपने आप को हैकल के किंगरे से गिरा दोगे तो खुदा के फरिश्ते तुम्हें बचाने आएंगे, और सब जानेंगे कि तुम खुदा के बेटे हो, और सब देखने वाले तुम पर ईमान लाएंगे। मेरा रास्ता बहुत आसान है। जब मेरा रास्ता इतना आसान है तो खुदा का दुखों भरा रास्ता इख्तियार करने की क्या जरूरत है? मैं आपको यकीन दिलाता हूं, अबलीस आज भी इसी किस्म की आजमाइशें इस्तेमाल करता है। वो आज भी लोगों को और हमें ऐसी आजमाइशों में डालने की कोशिश करता है जिनसे हम दुखों से तो बच जाते हैं, लेकिन खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। मिसाल के तौर पर इस वबा के दौरान इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से खुदकशी के वाकयात में इजाफा हो रहा है। कई जगह से खबरें आ रही हैं। अमेरिका में अप्रैल के महीने में बेरोजगारी के बावजूद शराब की फरोख्त 2019 के मुकाबले में 55% बढ़ गई, क्योंकि लोग जहनी तनाव का शिकार हैं। इसी तरह फहाशी फैलाने वाली वेबसाइट्स को देखने वालों का बहुत तेजी से इजाफा हुआ है, जिससे लाखों खानदान और यकीनन लाखों अज़दवाजी ताल्लुकात खराब होंगे, नुकसान होगा और घर उजड़ जाएंगे। ज़हनी दबाव की वजह से बेहद लोग अब बिला वजह खाने खा रहे हैं और मोटापे के बायस मौत की तरफ जा रहे हैं। कई लोग सिगरेट नोशी को उन्होंने बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से कैंसर की तरफ वो जा रहे हैं। नशावर अद्वियात और नशावर जो अशिया हैं उनका इस्तेमाल बढ़ गया है, जो हिलाकत का सबब बनेंगी। इन तमाम तर चीजों के इस्तेमाल के बढ़ने की वजह यह है कि लोग दुख दर्द से बचना चाहते हैं और आसान रास्ते जो कि अबलीस के रास्ते हुआ करते हैं और आसान तरीके जो कि अबलीस के तरीके हुआ करते हैं उनको इख्तियार करते हैं, खुदा के तरीके इस्तेमाल नहीं करते हैं। अबलीस बहुतों को आजमा रहा है कि उस खुदा को छोड़ दे जो पनाहगाह है और सकूनत गाह है।
खुदा को छोड़कर लोग नशे, सदमे, खौफ और खुदकशियों की वादियों में गिर जाएं, ये इब्लीस का मंसूबा है। बराए मेहरबानी इसके फंदों का शिकार ना हो, उसे धोखा ना देने दें। इब्लीस को इस धोखे की इजाजत ना दें कि उसकी राहें खुदा की राहों से बेहतर हैं। जिस्मानी और जज्बाती आराम के लिए उसके फंदों में ना फंसें, जो आपको बुरी आदत और नशों की तरफ ले जाती है, जिससे आपको नुकसान पहुंचता है। आप में से बहुत से लोग इस वक्त कह रहे होंगे शायराना अंदाज में ये बातें बड़ी अच्छी हैं, मगर मैं ज़हनी दबाव में डूबकर हलाक हो रही हूँ। मुझे बुरी आदत, बुरी नशों की लत पड़ गई है। मैं शक का शिकार हूँ। मैं बीमारी की वजह से मर रहा हूँ या मर रही हूँ। मेरे फरिश्ते कहाँ हैं? वो मेरे नजदीक क्यों नहीं हैं? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो मदद के लिए तैयार हैं। मत्ती ही की अंजील के 4 बाब की आयत नंबर 10 और 11 कहती है, यीशु ने उससे कहा, ऐ शैतान दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। जैसे ही खुदावंद ने इब्लीस का मुकाबला किया तो इब्लीस चला गया, उसने राह फरार इख्तियार की। फरिश्ते फौरन आकर यीशु की खिदमत करने लगे। गौर करें कि अगरचे फरिश्ते हर कदम और हर वक्त यीशु के साथ मौजूद थे और वो खिदमत करते थे, लेकिन उन्होंने इस मौके पर आजमाइश के बाद आकर यीशु मसीह की खिदमत की। फरिश्ते यीशु की पैदाइश, आजमाइश, जी उठने के वक्त भी मौजूद थे। मुझे यकीन है कि फरिश्ते हर वक्त और हर जगह यीशु की खिदमत के लिए मौजूद थे। अपना तवक्कुल और एतमाद खुदा पर रखें, उसकी खिदमत के लिए अपने आप को उसके सुपुर्द करें। इब्लीस की आजमाइशों का मुकाबला करें तो खुदा के फरिश्ते आपकी सब राहों में आपके मुहाफिज और आपके मददगार होंगे। हमने 3 बातें सीखी हैं, वादे की ताकीद, वादे की तसल्ली और वादे की तकमील। अब आखिरी जो बात हमें, जो सच्चाई इस ज़बूर में 13वीं आयत में मिलती है, वो है वादे की ताबीर, यानी वादे का नतीजा। इस वादे का जो आयत नंबर 10 में बयान किया गया है, उसका नतीजा क्या है? आयत नंबर 13 में लिखा है, तू शेर बब्बर और इफ़ी को रोंदेगा, तू जवान शेर और अजदहा को पामाल करेगा। खूबसूरत वादा और खूबसूरत नतीजा। इब्लीस ने खुदावंद यीशु की आजमाइश के वक्त ज़बूर 91 की इस आयत को भी जानबूझकर छोड़ दिया था, क्योंकि यीशु का पूरा तवक्कुल अपने आसमानी बाप पर था। इसलिए शैतान की आजमाइशें यीशु पर बेकुदरत और बेतासीर साबित हुई। यीशु ने इब्लीस की राहों की बजाय बाप की राहों पर तवक्कुल करते हुए अपने दुश्मन को शिकस्त दी और उसे अपने पैरों तले रौंद डाला। ये बात बहुत अहम है, इसलिए मैं दोबारा इस बात को दोहराना चाहता हूँ। गौर से सुनिए, क्योंकि ये सच्चाई बहुत खूबसूरत और बहुत ताकतवर है। यीशु इस हकीकत को जानते थे कि इन आजमाइशों और मुसीबतों में बाप पर तवक्कुल उन्हें संभालेगा और इब्लीस को शिकस्त देने में मददगार होगा। खुदा पर तवक्कुल और इब्लीस की आजमाइश 2 ना खत्म होने वाली जंगें हैं। ये जंगें हर वक्त जारी रहती हैं। जब दोनों में से एक चीज बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है। जब एक छोटी हो जाती है तो दूसरी बड़ी हो जाती है। जब आप अपने आप को ज्यादा से ज्यादा आजमाइशों में पड़ने के लिए मौके देते हैं तो आपका तवक्कुल कम से कम होता चला जाता है। लेकिन अगर आपका खुदा पर तवक्कुल करके उसके नजदीक जाते हैं तो आपका खुदा पर तवक्कुल मुसलसल बढ़ता चला जाता है और इब्लीस की आजमाइशें छोटी सी छोटी होती चली जाती हैं। याद रखें, जब आपका तवक्कुल बड़े खुदा पर हो तो आपकी आजमाइशें छोटी हो जाती है। मैं फिर से दोहराता हूं, जब आपका तवक्कुल बड़े खुदा पर हो तो आपकी आजमाइशें छोटी हो जाती हैं। आज आपको इब्लीस की आजमाइशों को शिकस्त देने के लिए क्या करने की जरूरत है? आपको हक ताला, कादरे मुतलिक, खुदावंद और खुदा पर पूरा एतमाद और पूरा तवक्कुल रखने की जरूरत है। अगर आप तवक्कुल करेंगे तो ताबीर यानी नतीजा आपकी यकीनी फतह होगी। आज कौन सी आजमाइश है जिसमें से आप गुजर रहे हैं?
कौन सी आजमाइश है जो आपको घेरे हुए है? आपको खुदा पर एतमाद और तवक्कुल रखने की जरूरत है। आज हमने कलाम मुकद्दस में से 4 बातें सीखी हैं। वो 4 बातें कौन सी हैं? पहली बात हमने आयत नंबर 9 में सीखी है, वादे की ताकीद यानी शर्त। और शर्त ये है कि हम खुदा पर भरोसा करते हुए उसके नज़दीक आए, उसे अपनी पनाह और गढ़ बना लें। क्या हम खुदा पर भरोसा करते हैं? क्या वो हमारी पनाह और गढ़ है? अगर हम ऐसा करेंगे तो आयत नंबर 10 में वादे की तसल्ली हमें मिलती है। वादे की ताकीद यानी शर्त और वादे की तसल्ली आयत नंबर 10 में मिलती है कि अगर हम खुदा पर भरोसा करते हुए उसे अपनी पनाह और गढ़ बनाएंगे, उसके साथ सकूनत करेंगे, तो आयत नंबर 10 हमें सिखाती है कि कोई आफत हमें खुदा की अबदी सकूनत गाह से दूर और मजबूर नहीं कर सकती है। आयत नंबर 11 और 12 में वादे की तकमील का जिक्र है। वादे की ताकीद, वादे की तसल्ली और वादे की तकमील का जिक्र आयत नंबर 11 और 12 में है। और आयत नंबर 11 और 12 ये सिखाती और बताती है कि खुदा अपने फरिश्तों के जरिए हमारी राहों की निगरानी और निगहबानी करता है। ये इस वादे की तकमील है। और आखिर में आयत नंबर 13 वादे की ताबीर यानी नतीजे का जिक्र करते हुए बताती है कि हमारे दुश्मन चाहे शेर बब्बर की तरह कितने ही वहशी और कितने ही जालिम क्यों ना हो, और कितने ही इफी यानी जहरीले सांप की तरह कितने ही मकार और जहरीले क्यों ना हो, हमारे बड़े और ना रुकने वाले खुदा से शिकस्त खाएंगे। और जो लोग बड़े खुदा को अपनी बड़ी पनाहगाह बनाते हैं वो हमेशा से हमेशा तक उसके साथ सकूनत करेंगे। हमारा खुदा बड़ा है और हमारा बड़ा खुदा हमारा बड़ा मुहाफिज है। इस्राएल का मुहाफिज ना ऊँघता है और ना सुनता है। मेरा सवाल आखिर में आपसे ये है, क्या बाइबल का बड़ा खुदा आपका खुदा है? अगर बाइबल का बड़ा खुदा आपका खुदा है तो आपका मुहाफिज बहुत बड़ा है। आपको घबराने की, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू हमारा मुहाफिज है, तू हमारे चट्टान है, तो हमारी पनाहगाह है, तो हमारी सकूनत गाह है। तू अपने फरिश्तों के जरिए ऐ खुदावंद हमारी बड़ी मुहाफ़ज़त करता है। तू हमारा बड़ा खुदा है और चूंकि तू हमारा बड़ा खुदा है इसलिए तेरी मुहाफ़ज़त भी बड़ी है। ऐ खुदावंद हम तुझ पर तवक्कुल करते हैं, हम तुझ पर भरोसा करते हैं। ऐ खुदावंद तू तौफीक अता फरमा कि हम इस एतमाद में, इस तवक्कुल में हर रोज लम्हा बलहम्हा ऐ खुदावंद बढ़ते चले जाएं और ऐ खुदावंद हम तेरे करीब आते जाएं। हम तुझे अपनी सकूनत गाह हर रोज बनाते रहें, हर रोज अपनी ज़रूरतें, अपनी ऐ खुदावंद तमाम तर परेशानियां, तमाम तर तकलीफ़ें ऐ खुदावंद खुशी के साथ तेरे साथ शेयर करने वाले हो सके। तेरे साथ ऐ खुदावंद हम अपनी मुश्किलात को बांटने वाले हो सके, क्योंकि तू हमारा बड़ा खुदा है जो बड़ी मुहाफ़ज़त करता है। ऐ खुदावंद मैं मिन्नत करता हूँ कि तू हमें अपने ऊपर एतमाद रखने की तौफीक अता फरमा। जिंदगी के ऐ खुदावंद आजमाइशों में हमें साबित कदम रहने का तू फजल और तौफीक अता फरमा दे, क्योंकि तू हमारा बड़ा खुदा है। और जब तू हमारा बड़ा खुदा है और हम तुझ पर तवक्कुल करते हैं तो हमारी आजमाइशें छोटी हो जाती हैं। हमें तवक्कुल अता फरमा, हमें एतमाद करना सिखा। यीशु मसीह के फतेहमंद जलाली और अब्दी नाम के वसीला से मांगते और पा लेते हैं, आमीन।